رات اندھیری اور پرسکون تھی۔ طوفان کے بعد قبرستان میں سناٹے اور خوف کا عالم کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہا تھا۔ اطراف کی قبروں پر سوکھی شاخوں سے بارش کا پانی قطروں کی صورت میں ٹپک رہا تھا۔ رات آخری پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ رمو کی جھونپڑی سے ذرا دور مغربی سمت میں قبرستان کی 4 فٹ شکستہ دیوار پر نصب لکڑی کا دروازہ ہولے ہولے چرچرا رہا تھا۔ بارش کے بعد آسمان بالکل صاف اور روشن ہو گیا تھا۔ مدھم سی پراسرار چاندنی میں ایک سایہ قبرستان کے اس شکستہ گیٹ سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ یہ جھکی جھکی کمر والا ایک بارش بوڑھا تھا جس نے لمبا چوغا پہن رکھا تھا، جس کے جھریوں بھرے چہرے پر ایک عجیب سا نور پھیلا ہوا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ایک تسبیح تھی اور اس کی کپکپاتی انگلیاں دانوں کو گھما رہی تھیں۔ اس بوڑھے کے چہرے پر قدرے تشویش اور پریشانی کے تاثرات تھے۔ اس کی سفید گھنی بھنموں سے ڈھکی ہوئی آنکھیں متلاشی انداز میں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں۔ اس کے بائیں ہاتھ میں لاٹھی نما عصا تھا جسے وہ قبرستان کی گیلی مٹی پر ٹیکتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا۔ پھر وہ ایک کھلی ہوئی کیچڑ زدہ قبر پر پہنچ کر رک گیا اور بڑے غور سے قبر کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ اسی خوبصورت عورت کی قبر تھی جس کے قریب ہی ایک انسانی پنجر بھی موجود تھا۔ یہ رمو کے بدنصیب باپ کی لاش تھی جس کا سارا گوشت بجو اور دیگر جانور نوچ کر چٹ کر چکے تھے۔ اس خوبصورت عورت کی لاش غائب تھی۔ اس بوڑھے کی آنکھوں میں اب تشویش کے سائے مزید گہرے ہو گئے تھے۔ پھر اس کے کپکپاتے ہونٹوں سے آواز ابھری، یہ بہت برا ہوا، انجنا کو کس نے قبر سے نکالا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد وہ بوڑھا لاٹھی ٹیکتا ہوا غیر معمولی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ پھر وہ رمو کی جھونپڑی کے پاس آ کر رک گیا۔ اس کے بعد جب وہ جھونپڑی کے دروازے سے اندر داخل ہوا تو ٹھک کر رک گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ سامنے بوسیدہ زمین پر ایک انتہائی پر جمال عورت بیٹھی، رمو کا سر اپنی گود میں لیے اسے ہوش میں لانے کے جتن کر رہی ہے۔ جب اس بوڑھے پر اس عورت کی نگاہ پڑی تو وہ بری طرح چونک گئی۔ انجنا، یہ شخص معصوم ہے، چھوڑ دے اسے اور چلی جا یہاں سے، وہ بوڑھا درشت لہجے میں اس عورت کو مخاطب کر کے بولا۔ انجنا نامی یہ وہی عورت تھی جسے دیکھ کر رمو بے ہوش ہو کر گر پڑا تھا۔ بوڑھے کی بات پر انجنا کے سرخ و سفید اور خوبصورت چہرے پر پہلے برہمی پھر یکلخت معنی خیز تاثرات ابھرے، اور پھر اس نے آہستگی کے ساتھ پہلے اپنی گود سے رمو کا سر زمین پر رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اس کے دلکش بدن پر کفن کی بجائے زرق برق لباس نظر آ رہا تھا۔ وہ خاصی سروقد اور دلنشیں خدو خال کی عورت تھی۔ وہ اب بوڑھے کی طرف ناگن جیسی آنکھوں سے گھورتی ہوئی بولی، تم ہار گئے ہو عالیشا، بہتر یہی ہے کہ خاموشی کے ساتھ چلے جاؤ، تمہارا ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ یہ شیطان عورت، میں اس معصوم انسان کو تم لوگوں کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا، میں پھر کہتا ہوں چلی جاؤ یہاں سے، بوڑھے نے انجنا سے پر جلال لہجے میں کہا۔ پھر بوڑھے کو اپنے عقب میں ایک تیز قہقہا سنائی دیا۔ وہ جلدی سے اپنے عقب میں گھوما تو چونک گیا۔ جھونپڑی کے دروازے پر ایک دراز قد اور سیاہ رو شخص موجود تھا۔ اس نے گیروے رنگ کا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ اس کے سیاہ ماتھے پر ترشول کا تلک تھا۔ اس کی گول گول قدرے ابلتی ہوئی آنکھوں میں شیطانی چمک اور کالے بدہیت ہونٹوں پر مکرو مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ وہ قہقہا اس نے ہی لگایا تھا۔ اس نے کھرکھرتی لہجے میں بوڑھے کو مخاطب کر کے کہا، عالیشا، اپنی شکست تسلیم کر لو، تمہاری لاکھ کوششوں کے باوجود انجنا کو اب آتما شکتی حاصل ہو چکی ہے، تو اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چلا جا خاموشی سے۔ شیطان کی رسی خدا دراز ضرور کرتا ہے مگر چھوڑتا نہیں ہے، تم لوگوں کا انجام بھی اب قریب ہی ہے، عالیشا نامی اس بزرگ نے پجاری کو گھورتے ہوئے کہا، اور پھر اپنا عصا سنبھالتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی پجاری اور انجنا نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھا اور ان کے چہروں پر عجیب سی شیطانی مسکراہٹ رقصاں ہو گئی تھی۔ تب وہ پجاری انجنا سے بولا، تمہیں نئے جیون کے ملنے کی بدھائی ہو انجنا، اب تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ ہاں پجاری،
ये सब तुम्हारी कोशिशों के कारण हुआ है। तुमने मुझे जैसी अदना दासी का बड़ा भला किया है, अब मैं अपने दुश्मनों से अच्छी तरह बदला ले सकूंगी। अंजना ने मंबा पुजारी से तशक्कुर आमेज लहजे में कहा, मगर उसके अंदाज में आतिश इंतकाम की चिंगारियां फूट रही थीं। नहीं, इसमें तुम्हारी तपस्या भी शामिल थी, मंबा पुजारी ने खुरदरी आवाज में कहा और मजीद बोला, लेकिन अंजना तुम्हें फिर भी इस बड़े आलीशा से होशियार रहना होगा। कम बख्त अब भी तुम्हें बांधने की शक्ति रखता है। उसने इस कब्रिस्तान के गिर्द एक हिसार खींच दिया है और तुम वो हिसार तोड़कर यहाँ से नहीं निकल सकती। तुम इस छोकरे रमू से निहायत चालाकी से काम लेना और बरा रास्त इस बड़े आलीशाह से टकराने की बजाय इसे आगे रखना। इसकी बात सुनकर अंजना के खूबसूरत चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट कूद कर आई और वो एक निगाह बेहोश पड़े रमू की तरफ देखकर मंबा पुजारी से बोली, इसकी तुम चिंता ना करो, मैं इसे अपनी खूबसूरत जुल्फों के जाल में इस तरह जकड़ लूंगी कि यह खुद ही आलीशा के खून का प्यासा हो जाएगा। तुम अभी जाओ, कहीं इसे हम पर शक न हो जाए। मैं इसे होश में लाने के बाद काम पर लगाऊंगी। अंजना की बात सुनकर मंबा पुजारी अपने मोटे काले होंठों पर मकरू मुस्कुराहट बखेरता हुआ वहां से चला गया। रमू की आंख खिली तो सुबह नमूदार हो चुकी थी। इसकी जब आंख खिली तो वो अपने सामने एक खूबसूरत औरत को देखकर बुरी तरह ठिठक गया। वो इस खूबसूरत औरत को पहचान गया था। पहले तो उसे अपने सामने जिंदा सलामत पाकर खौफजदा हुआ, मगर फिर एक ख्याल के तहत इसका दिल खुशी से उछलने लगा। फिर इसने देखा कि इस औरत की खूबसूरत आंखों में आंसू उतरे हुए थे और दिलकश चेहरे पर दुख के तासुरात फैले हुए थे। वो औरत अब सिसकियां भरते हुए रोने लगी थी। वो चारपाई पर बैठी थी। रमू उसे रोता देखकर बेचैन सा हो गया और फौरन उठकर उसकी जानिब बढ़ा और बोला, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? अंजना ने अपनी सिया और नमनाक पलकें उठाकर रमू की तरफ एक नजर देखा और गुल्लूगीर से लहजे में बोली, मेरा नाम परवीन है, मेरे साथ बहुत जुल्म हुआ है, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? इसकी बात सुनकर रमू का दिल बे-इख्तियार पसीज गया और वो अपना कपकपाता हुआ एक हाथ इसके कांधे पर आहिस्तगी से धरते हुए बोला, तुम्हारे साथ किया जुल्म हुआ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। सच, अंजना ने एकदम खुश होकर कहा और रमू का हाथ अपने नर्म व नाजुक हाथों में ले लिया। एक खूबसूरत औरत का कुर्ब रमू को शादा किए दे रहा था। अंजना अपने चेहरे पर गहरी गमना की तारी करते हुए बताने लगी, मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और मुझे से धोखे से एक सुंदर दास नामी शख्स ने शादी कर ली थी और जब इसका दिल मुझसे भर गया तो उसने मुझे कत्ल करने की कोशिश की, मगर जिसे अल्लाह रखे इसे कौन चखे। मुझे मुर्दा समझकर उसने यहाँ जिंदा गाड़ दिया। लेकिन इतना कहकर वो दोबारा सिसकने लगी तो रमू का दिल भी भर आया। सुंदरदास का एक बूढ़ा जासूस, जादू का माहिर मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है। इसने मुझे यहाँ जिंदा सलामत देख लिया है। अब वो सुंदरदास को सारी हकीकत बता देगा और फिर वो मुझे हलाक करने की कोशिश करेगा। तुम बिल्कुल मत घबराओ परवीन, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, रमू ने जोशीले लहजे में कहा और अंजना की आंखें एकदम चमक उठी और वो बेइख्तियार रमू के करीब हो गई। रमू उसकी घनेरी जुल्फों की होशरुबा महक से बेहाल सा होने लगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे एक सहारे की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है तुम जैसे बहादुर नौजवान की बीवी बनकर मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसकी बात सुनकर रमू पर जैसे शादी मर्द की सी कैफियत तारी होने लगी। वो ख्वाब व ख्याल में भी ऐसी खूबसूरत औरत को हासिल करने की तमन्ना नहीं कर सकता था। हाँ, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा, इसने अपने हवास पर काबू पाते हुए जवाब दिया। अंजना के होंठों पर जौना दिलावेज मुस्कुराहट फैल गई और आंखों में एक खास चमक उभर आई, मगर फिर वो अपने लहजे में तशवीश लाते हुए बोली, लेकिन मुझे इस बड़े जादूगर से डर लगता है। इसने मुझ पर अमल करके मुझे इसी कब्रिस्तान की चहार दीवारी तक महसूर कर दिया है। जाहिर है हमारा निकाह इस कब्रिस्तान में तो नहीं हो सकता ना, ये काम तो यहाँ से निकलने के बाद ही हो सकता है।
अंजना ने निहायत मक्काराना नाज व अंदाज से कहा और रमू की जोश व गुस्से के मारे सांस फूलने लगी। ये सब मक्कार अंजना के लहजे की कारस्तानी थी। एक खूबसूरत औरत के मुंह से रमू को बहादुर नौजवान का खिताब मिलना और फिर शादी पर रजामंद होना, ऐसे में रमू का सीना फूल जाना कोई अचंभे की बात नहीं थी। लिहाजा रमू जोशीले लहजे में अपना सीना तान कर बोला, परवीन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं इस बड़े जादूगर से अच्छी तरह निमट लूंगा। इसकी बात सुनकर मक्कार अंजना की आंखें चमकने लगे। फिर जरा देर बाद रमू कदरे शर्माते हुए अंदाज से बोला, क्या वाकई तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? रमू को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। परवीन जैसी खूबसूरत औरत इसकी बीवी बने को तैयार थी। रमू की बात पर अंजना ने एक खास अदा के साथ इसकी जानिब देखा और रमू ने इसकी खूबसूरत आंखों में खुमार आलूद पैगाम को महसूस करके अपनी नजरें झुका दी तो अंजना एक कातिल हंसी हंसकर बोली, मेरी बात का यकीन करो, मेरा बस चले तो मैं अभी तुम्हारे साथ जाकर किसी करीबी मस्जिद में निकाह पढ़वा लूं, मगर जब तक वो बड़ा जादूगर खत्म नहीं हो जाता हमारी शादी नहीं हो सकती। ठीक है, तुम बेफिक्र रहो परवीन, इसे आने दो, मैं इससे निमट लूंगा। दर हकीकत वो अब बड़ी संजीदगी के साथ इस बूढ़े आलिशा से निमटने के बारे में सोचने लगा था जो उनके बीच दीवार बना हुआ था। रमू का दिल बेचैन हुआ जा रहा था। इसने कुछ सोचते हुए अंजना से कहा, परवीन हो सकता है इस बड़े ने तुम्हें यूं ही डराया हो, आओ मेरे साथ, हम अभी यहाँ से निकल चलते हैं। अंजना ने एक नजर उसकी जानिब देखा। एक लिम्हे इसके चेहरे पर सोच की लकीरें उभरी और फिर वो उसके साथ चलने पर राजी हो गई। रमू और अंजना दोनों साथ साथ चलते हुए कब्रिस्तान के शिकस्ता गेट पर पहुंचकर रुक गए। रमू ने कदरे चौंक कर अंजना की तरफ देखा। अंजना के खूबसूरत चेहरे पर अजीब सा खौफ और परेशानी के आसार नुमाया थे। वो रुककर खौफजदा सी नजरों से नीचे जमीन की तरफ तकने लगी। क्या हुआ परवीन, आओ डरो नहीं, मैं हूं ना साथ। रमू ने इसका हौसला बढ़ाया तो परवीन ने डरते डरते एक कदम गेट से बाहर निकाला तो अगले ही लम्हे वो एक तेज चीख के साथ उछलकर पीछे की जानिब यूं जा पड़ी जैसे इसको किसी ने जोर से धक्का दिया हो। रमू भी एक लम्हे को परेशान सा हो गया। अंजना को यूं गिरते देखकर वो भी काफी हद तक खौफजदा सा हो गया था, मगर एक खूबसूरत औरत के सामने वो अपना खौफ जाहिर करना नहीं चाहता था, वो भी ऐसी औरत के सामने जो उसके साथ बयां करने पर तैयार थी। लिहाजा वो अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए बिजली की सी तेजी के साथ जमीन पर गिरी अंजना की तरफ लपका। फिर अंजना को संभालने के दौरान उसने देखा कि इसका एक पांव एड़ी की तरफ से झुलस कर सिया पड़ चुका था। अंजना के गोरे चिट्टे पांव की ये हालत देखकर पहली बार रमू के दिल और दिमाग मैं बूढ़े जादूगर के खिलाफ नफरत का अलाव सुलगा। देख लिया ना तुमने, जादूगर ने किस तरह अपने जादू के जरिए मेरा यहाँ से निकलना नामुमकिन बना रखा है। अगर मैंने फिर दोबारा इस मनहूस कब्रिस्तान से बाहर कदम निकालने की कोशिश की तो जलकर राख हो जाऊंगी। अंजना ने तकरीबन कराहते हुए रूहानी आवाज में कहा। भला रे मुंह को ये क्यों कर मंजूर होता कि अंजना जैसी खूबसूरत औरत का ये हश्र हो। लिहाजा उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नुमाया होने लगे और दिल ही दिल में बड़े जादूगर को ठिकाने लगाने के मंसूबे पर गौर करने लगा। मैं इसे अब हलाक करके ही दम लूंगा, तुम फिक्र ना करो परवीन, रमू ने मजबूत और अटल लहजे में कहा और अंजना को सहारा देते हुए वापस झोंपड़ी में ले आया। मक्कार अंजना के खूबसूरत गोरे गोरे पांव पर धब्बा देखकर रमू का गुस्सा आसमान को छूने लगा था और अंजना पर इससे तरस भी आने लगा था। बहर तौर अब तहिया कर लिया था कि वो इस बड़े जादूगर को हलाक करके ही छोड़ेगा। वो उसे अपनी राह का कांटा समझने लगा था। इसी असना में रमू ने कुछ पत्तों का लेप तैयार करके अंजना के झुलसे हुए पांव पर मसल दिया और फिर कुछ सोचकर बोला, परवीन एक बात तो बताओ, क्या मुझ जैसा एक आम आदमी इस बूढ़े जादूगर को हलाक कर सकेगा? बिल्कुल तुम ये काम कर सकते हो, बल्कि तुम ही तो उसे हलाक करने की सकत रखते हो। इसकी बात पर अंजना फौरन बोली,
और फिर जैसे अचानक इसे एहसास हुआ कि इसे दूसरे तरीके से रमू को जवाब देना चाहिए था, ताहम तीर कमान से निकल चुका था, लिहाजा रमू उसकी बात पर कदरे चौंक कर अंजना से बोला, क्या मतलब मैं भला एक जादूगर को हलाक करने की किस तरह सकत रखता हूँ? रमू ने कहा, और फिर जैसे अपनी बात पर बुज़दिली का एहसास हुआ तो वो दोबारा बोला, बहरहाल तुम मत घबराओ परवीन, मैं इसका पत्ता साफ करके ही दम लूंगा। इसकी बात सुनकर मक्कार अंजना ने इत्मीनान का सांस लिया और मखमूर मुस्कुराहट के साथ रमू की जानिब तकने लगी, फिर लोहा गर्म देखते हुए इसके करीब आई और बोली, ये सब जरूरी है रमू, क्योंकि इस बूढ़े जादूगर के मरने के बाद हम दोनों शादी कर सकते हैं, नहीं तो वो कमीना सुंदर दास इस बूढ़े जादूगर की मदद से मुझे हलाक करवा देगा। रमू अब संजीदगी से आलिशा को कत्ल करने के मंसूबे पर गौर करने लगा। इसी दिन की खामोश और उजाड़ पुरस्रार शाम का जिक्र था। रमू और अंजना आपस में मीठी मीठी बातों में मशगूल थे। अंजना अब उसे पूरी तरह आलिशा के कत्ल पर आमादा कर चुकी थी। इस नायरा अंजना जरा चौंकी, इसके चेहरे पर अब अजीब सी घबराहट के तासुरात ऊद कर आए। फिर वो सरसराते लहजे में रमू से बोली, रमू कोई इस तरफ आ रहा है, शायद वही जादूगर है। ये कहते हुए वो झोंपड़ी से बाहर आ गई और रमू भी बाहर निकल आया। सामने आलिशा मौजूद था, जो कहर आलूद नजरों से अंजना को घूरे जा रहा था। फिर मक्कार अंजना ने धीरे से पास खड़े रमू से सरगोशी की, रमू होशियार हो जाओ। ये सुनने की देर थी कि रमू गुस्से से फनकुत्ता हुआ झोंपड़ी के अंदर आया और उसने अपनी कुदाल उठा ली। उधर अचानक इसे बाहर अंजना के गुड़ गिवाने की आवाज आई। वो शायद आलिशा से मुखातिब थी। मेरा पीछा छोड़ दो, खुदा के लिए मैं अब रमू के साथ पुरसुकून जिंदगी बसर करना चाहती हूँ। रमू अंजना की गिरियाजारी पर कुड़ने लगा और साथ ही इसका गुस्सा भी सवा होने लगा। इस वक्त इसे बाहर से जादूगर की कहर आलूद आवाज सुनाई दी। वो अंजना से कह रहा था, अपनी गंदी जबान पर खुदा का नाम मत ला, तो एक शैतानी रूह है और जहन्नम तेरा मुकद्दर। तब रमू ने बना सोचे समझे अपनी कुदाल उठाई और आलिशा के सर पर पहुंच गया। फिर इससे पहले कि आलिशा कुछ समझता, रमू ने दोनों हाथों से कुदाल थामकर आलिशा के सर पर दे मारी। कुदाल के वार से आलिशा की खोपड़ी चटक गई और वो जब जमीन पर गिरा तो बेइख्तियार उसके लबों से अल्लाह निकला। वो मर चुका था। रमू आलिशा की जबान से अल्लाह सुनकर बुरी तरह लरस गया। इसका गुस्सा अब हुआ हो चुका था। कुदाल उसके हाथों से छूट गई और उस पर हैबतनाक कपकपाहट तारी हो गई। मगर इसके अकब में खड़ी अंजना के होंठों पर शैतानी मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। बाबा आलिशा कुदाल के एक ही वार से मर चुका था। रमू के हाथ से कुदाल छूटकर गिर चुकी थी। वो सुरता पांव तक लर्जा बरंदाम था। इसकी नजरें बाबा आलिशा के चेहरे पर जैसे जिम कर रह गई थीं। बाबा आलिशा के लबों से बरामद होने वाले आखिरी लफ्ज, अल्लाह ने रमू को अंदर से बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। पास खड़ी मक्कार अंजना ने भी ये लफ्ज सुन लिया था। उसने शातिर नजरों से रमू के चेहरे की तरफ देखा, गोया उसकी जहनी कैफियत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो। इसे रमू के खामोश चेहरे पर उलझन आमेज तासुरात नजर आए। पछतावे की झलक भी उसकी फटी फटी आंखों में करवटें ले रही थी। ऐसे में फौरन अंजना ने रमू को मजीद किसी सोच में मुब्तला न होने दिया और बोली, रमू तुम्हें क्या हो गया है, जल्दी करो, इस जादूगर की लाश को कब्र खोद कर यहीं दफना दो। रमू अंजना की बात सुनकर चौंका, फिर उलझन आमेज परेशानी से बोला, परवीन तुम तो कहती थीं कि ये बड़ा कोई जादूगर था, मगर मरते समय इसने अल्लाह का नाम क्यों लिया? ये एक ऐसा सवाल था जिसने अंजना को एकदम परेशान कर डाला। ताहम वो रमू की जानिब नशीली निगाहों से देखते हुए मासूम लहजे में बोली, रमू तुम वाकई सीधे सादे इंसान हो। ये भी इस जादूगर की एक चाल थी तुम्हारा जहन भटकाने और मुझसे बददिल करने की। तुम भूल गए मुझे भी एक ऐसे ही शैतान ने धोखे से लूटा था, और जब मुझे इसकी असलियत का पता चला तो उसने इस जादूगर की मदद से मुझे हलाक करने की कोशिश की थी। अंजना ने इतना कहा, फिर अपने जाल का घेरा रमू के गिर्द मजीद तंग कर दिया। इसके नर्म गुदाज महकते दमकते कुर्ब ने रमू की सोचने समझने की सलाहियतों को नाकारा बना डाला।
अंजना अपने लहजे में दुनिया जहान की शिरीनी समेटते हुए दोबारा बोली, रमू अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो अभी मेरे साथ चल लो, मैं तुम्हें इस बदबख्त सुंदर दास के घर लिए चलती हूँ। तुम अपनी आंखों से देखना, मुझे देखेकर उसकी हालत क्या होती है। अंजना की बात सुनकर रमू को एहसास हुआ कि इसने ये बात कहकर शायद परवीन का दिल दिखाया था और इस पर शुबा किया था, लिहाजा वो परवीन का दिल रखते हुए मुलायमत से बोला, नहीं परवीन ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा यकीन है, अब तुमको जो कहोगी मैं वही करूंगा। अंजना की आंखें इस बात पर एकदम चमक उठी।